Class, today I am going to teach about the subject Accountancy Class 12 topic Treatment of Goodwill. In this topic, before starting this topic, we have to discuss about the admission of new partner and the need of admission of new partner. Admission of a new partner means reconstitutions of the partnership firm. At the time of admission of a new partner, the old partner did come to an end, a new partnership did comes in existence. It means that when the new partner new partner admitted in the partnership firm, the old partnership deed cannot be useful, and the partnership firm has to make a new partnership deed. And second is a need of the admission of new partner. The new partner may be admitted by any one or more of the following reason. The first is for procuring more capital for expanding business and acquiring more ability for efficient management and administration of business, and increase business of the firm, progress the business, and reducing competition and various other reasons. The lots of reason, that is why the lots of reason to admitted a new partner in the partnership firm. And the second is the following person can be admitted in a partnership firm. First, an individual who cross the majority age. It means that more than 18 years. And firm, a minor cannot become a partner in a firm, but he may be admitted for a benefit of partnership firm. And other institution and association can also become a partner in any partnership firm. The some general entries related to the partnership firm when the new partner admitted in the partnership. And this accounting treatment of the goodwill on the admission of new partner. The new partner give shares of goodwill will be told to partners privately. Before discussing, I am going to discuss some important. Each partner, a new partner who is admitted in a firm, bring capital and goodwill in cash. He bring capital because he enable him to have a share in the asset of the firm. He bring goodwill because he enable him to have a share in the profit of firm. It means that when the new partner admitted in any firm, he can bring some capital and some goodwill in cash form. And he bring capital because he enable him to have share in the एसेट ऑफ द फर्म. अगर कोई भी पार्टनर कैपिटल लेकर के आ रहा है, कोई न्यू पार्टनर अगर कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो इसका मतलब वो लायबिल हो गया उस फर्म के एसेट्स के लिए. वो जो फर्म का एसेट्स है उसके शेयर के लिए वो लायबिल होगा. अगर वो कोई भी कैश अमाउंट में कोई गुडविल लेकर आ रहा है, तो वो फर्म के प्रॉफिट के शेयर्स के लिए लायबिल होगा. तो इस चीज़ को फोकस में करना है कि पार्टनरशिप ला क्या रहा है. अगर वो गुडविल ला रहा है तो वो फर्म के प्रॉफिट के लिए लायबिल होगा उस शेयर्स को लेने के लिए. और तो कोई भी न्यू पार्टनर अगर फर्म में आ रहा है तो वो कैपिटल लेकर आता है और गुडविल अगर दोनों ला रहा है तो सबकी जनरल एंट्रीज अलग अलग है. तो इस वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल एंट्रीज ऑफ द ईच. We will discuss about the entries of the goodwill. The first is the new partner gives share of goodwill to the old partner respectively. अब जब कोई भी नया पार्टनर किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंट्री करता है तो उसको जो उसके ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, अब जब ओल्ड पार्टनर्स को अपने भी प्रॉफिट को शेयर कराना पड़ता है तो ओल्ड पार्टनर्स जो वो सेक्रीफाइस करता है. तो जब न्यू पार्टनर अगर एंट्री कर रहा है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में और उसने कुछ भी गुडविल अपने ओल्ड पार्टनर को प्राइवेटली दिया, मतलब चोरी छुपे दिया या छुपा करके दे दिया, तो उससे रिलेटेड कोई भी जनरल एंट्रीज नहीं होंगी. ठीक है.
ये चीज़ हमेशा याद रखना, जब क्वेश्चंस में अगर ये लिख दिया गया है कि उसने न्यू पार्टनर से प्राइवेटली अपने ओल्ड पार्टनर्स को या इस फर्म को कोई पार्टनर्स को दिया, तो उसकी जनरल एंट्रीज नहीं रिकॉर्ड की जाएगी। सेकेंड देखो, अगर क्वेश्चन में बुक गुडविल लिखा हुआ है, बुक गुडविल मतलब कि कुछ गुडविल ऐसी होती है जो हमारे बैलेंस शीट में शो होती है। अब उस गुडविल को बैलेंस शीट में शो किया जाता है जिस गुडविल को परचेज किया जाता है। तो याद रखिएगा, गुडविल जो होती है वो जनरल एंट्री में शो नहीं की जाती, वही गुडविल जो होती है वो बैलेंस शीट में शो नहीं होती है। जनरल एंट्रीज में उस गुडविल को नहीं शो किया जाता जो जनरेट होती है, मगर जिस गुडविल को हमने परचेज किया वो बैलेंस शीट में एसेट साइड शो होती है, और उसकी अलग उसकी एंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है कि बुक गुडविल, मतलब कि वो गुडविल जो हमारे बैलेंस शीट में अपीयर्स है, तो उसकी जनरल एंट्रीज क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। जो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे। अब वो ओल्ड पार्टनर वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, या एक्स वाई भी हो सकता है, तो उन दोनों को डेबिट कर दिया जाएगा और टू गुडविल अकाउंट। सेकेंड है पार्टनर ब्रिंग कैपिटल। अगर पार्टनर अपने साथ न्यू पार्टनर अपने साथ कैपिटल लेकर के आ रहा है, तो इट मीन्स डैट कि उसके कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू द न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, वो क्रेडिटेड होगा। थर्ड इज़ अ पार्टनर ब्रिंग प्रीमियम। प्रीमियम यहाँ पे क्या हुआ? जब कोई भी न्यू पार्टनर्स एंट्री करता है पार्टनरशिप फर्म में, तो जो है हमारे ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं, तो उनको जब न्यू पार्टनर कुछ चीज़ कैपिटल के फॉर्म में लेकर आ रहा है तो उसको हम प्रीमियम कहेंगे। वो हमारे ओल्ड पार्टनर के लिए प्रीमियम हो गया, फर्म के लिए प्रीमियम हो गया। इसीलिए बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू प्रीमियम अकाउंट। प्रीमियम क्या है? जो हमारे न्यू पार्टनर्स लेके आ रहे हैं। उसकी सेकेंड होगी कि वो ही प्रीमियम जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किसको? ओल्ड पार्टनर को। अब किस रेशियो पे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो के बेसिस पर उसको क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिटेड कर दिया जाएगा। अब सेकेंड है प्रीमियम विड्रॉ। अगर ओल्ड पार्टनर्स ने उस प्रीमियम को विड्रॉ कर लिया तो एंट्रीज क्या होगी? ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिटेड। सेकेंड है कि अगर पार्टनर कोई सामान लेकर के आ रहा है, पार्टनर कोई भी एसेट्स लेकर आ रहा है फर्म में, तो उसकी जनरल एंट्री क्या होगी? एसेट अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट। अब न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। अगर कभी कभी होता है कि न्यू पार्टनर्स जो होते हैं वो कुछ मतलब गुडविल जो है अमाउंट ऑफ गुडविल कैश में नहीं लेकर आते, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और जो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट है उसका हम कैसे करेंगे? जो हमारे उसके शेयर ऑफ द गुडविल है उससे उसको डेबिट करेंगे, और ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किस बेसिस पर किया जाएगा? वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो पर किया जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों की सारी एंट्री समझ में आ गई। इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे, तो वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस कि अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल एसेट्स। तो इंटेंजिबल एसेट्स, अब ये जो हमने एक बात स्टार्टिंग में बोली थी कि गुडविल को शो नहीं किया जाता जनरल एंट्रीज में, तो यहाँ पे समझेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग इंटेंजिबल एसेट्स की प्रॉपर्टीज़ बताई गई है कि इंटेंजिबल एसेट्स वो होता है जिसको हम एक अमाउंट में मेज़र कर सकते हैं, मगर कुछ जो गुडविल होते हैं जो जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उनको एक डिफाइंड अमाउंट में एक एसेट में नहीं मेज़र किया जा सकता। जैसे कि मतलब जैसे हम पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को एक अमाउंट में मेज़र कर लेते, उस तरह से हम गुडविल को नहीं मेज़र कर पाते। ये अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, मतलब वो सारे गुडविल जो इनहेरेंट गुडविल हो, जो मतलब कंपनी के रेपुटेशन से बिल्डअप की गई हो, जिसके लिए आपने कोई वर्थ नहीं पे किया गया, कोई अमाउंट नहीं पे किया, वो सारे गुडविल को क्या किया जाएगा? उसको जनरल एंट्रीज में शो नहीं किया जाता। तो यही कह रहा है अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंटेंजिबल एसेट इनहेरेंटली
इंहेरेंटली जनरेटेड गुडविल विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, उसको बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया जाएगा। जो इनहेरेंट गुडविल होंगे, मतलब जो रेपुटेशन से जो गुडविल बनी है, उस गुडविल को बुक ऑफ अकाउंट में शो किया जाएगा जो परचेज गुडविल है। तो इनहेरेंट but it will be adjusted through the capital account of the partner in their profit sharing ratio any condition except payment of the money or money worth in consideration of goodwill। तो ये सारी चीज़ें, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड this topic. You have any doubt, you can ask me question. Thank you.